Hey, good morning, guys. So here I'm come to express my thought, my feelings, and this is my day third of. So hello, hello everyone. This is my day third of speaking fluent challenge English. So this is a day third of my speaking communication practice video session. In this video, I'll tell about myself and about my actual condition. So ठीक है. So okay. So I'll tell you first of all who I am. So my name is Anurag Kumar and I belong to Bihar, but I live in Ludhiana. I born in Bihar, but actually basically I live in Ludhiana, Punjab, and from UKG to uh, to currently I'm doing BTech in computer science, honors in AI, artificial intelligence, and machine learning from RIMT University, Mandi Gobindgarh. Uh, okay, from there, then uh, basically, what should I tell you? The main motive of this video is to practicing the practicing the things that will improve my communication. In this video I'll improve my communication, so this is my practice video. So and what should I tell you guys? This is my at, in the morning I walked up and I woke up and then I woke up, then I get freshed, and I took a bath and then freshen up and then get ready for college. And then after some time uh, I'll go for my college, and then after that I reached the bus stop. Then I was I waited for some 5 to 10 minutes for my university bus. Then then I then after some time the bus has reached, and then I uh, I catch the bus and then I'll go to the university. Then after some time there's a start the lecture. Then there's a first lecture of data analytics, and second lecture of it should be personality development, and third, no, I think second lecture communication. So no, I think second lecture is the of the computer networks, and the third lecture is of what about that personality development. And in my personality development lecture, my teacher told me about the story about story of eagle. So actually i'm I'm pursuing the challenge video for only 2 to 3 minutes. uh, I'll practicing in English. Then after that I can use हिंदी लैंग्वेज, सो दैट मैं आपको हिंदी बताता हूँ. तो मैडम ने क्या बताया, देखो ईगल ईगल को जानते हो क्या था? चील चील चील. मैम ने चील के बारे में बताया कि हम उन्होंने एक बुक का रेफरेंस दिया कि वो उस बुक का हम यूज़ कर सकते हैं. मतलब ना, लाइक देखो, कोई ईगल है तो हम उस ईगल से क्या क्या सीख सकते हैं, मैम ने वो बताया. ठीक है. तो लाइक मैम ने बताया कि
जो ईगल होता है वो कैसे मतलब बहुत सी चीज़ें बताया सीखने वाली, उससे हम लीडरशिप क्वालिटी सीख सकते हैं कि वो कैसे, जो जो ईगल होता है, जो चील होता है, वो कभी भी छोटी मोटी चिड़ियों के साथ नहीं उड़ता, वो हमेशा ईगल के साथ ही उड़ता है। तो दैट मीन्स कि अगर आप लीडर हो तो आप लीडर के साथ ही रहो, तभी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो और ज़्यादा ग्रो होगी, या फिर मतलब आपकी अ, जो आपका ऑरा होगा वही वो मतलब आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। अगर आप अपने से कम हाई लो वैल्यू पीपल लोगों के साथ रहेंगे तो फिर जो आपका ग्रोथ होगा वो उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इट शुड मैटर, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि देखो, और मैम ने ये भी बताया कि लाइक जो ईगल होता है वो एक टाइम बाद होता है ना, एक टाइम होता है फिर वो अपने अपने ही मतलब चोंच से ना अपने ही पंखों को मतलब कुतर कुतर के ना मतलब वो तोड़ देता है पूरा, ब्लड, बहुत पेन होता है उनको, ठीक है। वो मतलब पूरा फिर काफ़ी महीनों तक ना उनका जो जब तक नया पंख नहीं आता तब तक वो ऐसे ही रहता है, ठीक है। देन आफ्टर सम टाइम ऐसे ही उनका पंख रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब फिर वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही मतलब किसी पहाड़ी बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ पे जाके मतलब ऐसे ही छुप जाते हैं, ठीक है। और फिर थोड़े दिन बाद जब नया पंख आ जाता है, नया चोंच आ जाता है, उनका चोंच भी मैंने सुना था कहीं किसी यूट्यूब वीडियो में सुना था मैंने। और लाइक उनका जो चोंच होता है वो किसी पत्थर में मारते रहते तब तक मारते जब तक वो टूट ना जाए, और जब एक बार चोंच उनका टूट जाता है पुराना वाला, फिर उनका नया चोंच आता है, और फिर नया चोंच आता है, नया पंख आता है, और उस नया वो 20 साल और ज़्यादा उनकी एज बढ़ जाती है। तो गाइस इससे मतलब मैम बताए थे कि इससे एक चीज़ सीखने को मिलता है कि जो कंफर्ट जोन है, इससे अगर हम इससे निकल गए, लाइक ईगल होता है वो खुद से क्या करता है, वो अपने ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, वो जानबूझ के अपने चोंच को तोड़ता है। उसको पेन तो बहुत हो रहा है, वो बस वो पेन सहता है, वो पेन सहता है उस तभी तभी 20 साल उसकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर सोचो वो पेन सहता ही ना, फिर उसकी लाइफ 20 साल नहीं बढ़ती, ठीक है। तो हमारे लिए भी ऐसा ही है, जो लीडर होता है उसके उसके टाइम उसके मतलब लाइफ में एक फेस ऐसा आता है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, जो बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होता है उसका, डाउनफॉल होता है। बट उसके बावजूद भी अगर अगर लगातार उसके बावजूद भी वो मेहनत किया, आफ्टर दैट फिर उसके बाद अगर मान लो वो पूरा प्रॉपर मेहनत करता है, ईगल अपना मतलब जो भी है चोंच वगैरह तोड़ता है, ठीक है, पंख तोड़ता है, फिर दोबारा से उसका रीजनरेट हो जाता है, दोबारा से उसका आ जाता है, फिर उसके बाद जो 20 साल तक हो जाता है, ठीक है। और फिर तुमने देखा होगा जो बाकी पंछी होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे उड़ती रहती है, ऐसे कितना बार उन्हें पंख फैलाना पड़ता है, ठीक है। बट ईगल क्या करता है, एक बार ही मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है, और बादलों के ऊपर चले जाता है, हाई एल्टीट्यूड पे चले जाता है। जब एक बार तुम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हो ना, उसके बाद देखते हो ईगल कैसे चलता है, बस ऐसे ऐसे करके रखता है, फिर उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक उड़ता है, ठीक है। एंड देन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो, अगर आप स्टार्टिंग में आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे ईगल को मेहनत करना पड़ता है कि जो बादल होता है बादल के ऊपर मतलब जाने के लिए, जब बारिश भी होता है, आंधी तूफान आता है, देखते हो बारिश आती है तो सारी जो चिड़िया होती है वो घोंसले में छिप जाती है, पर जो ईगल होता है वो मतलब बादल के एकदम ऊपर ही चला जाता है, ठीक है। और फिर आराम से उड़ता है, जब बारिश खत्म होता है फिर नीचे आता है। मतलब माइंडसेट देख रहे हो गाइस, माइंडसेट माइंडसेट का गेम होता है, ठीक है। सारा गेम ही माइंडसेट का होता है। जंगल में ना कहते हो ना कि सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, हाथी। सबसे चालाक कौन सा है, लोमड़ी। पर राजा शेर को ही क्यों बोलते हैं पता है? राजा शेर को इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि शेर का माइंडसेट वैसा है। अगर 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 शेर ना हाथी को देखता है ना तो उसके दिमाग में बस यही चलता है कि कैसे इसको कैसे मैं खाऊं, कैसे इसको मारना कैसे है, ठीक है। तो वही चीज है, वो बस ये सोचता है, शेर सोचता है सबसे पहले इसके गर्दन पे पैर पे वार करूंगा, फिर ये नीचे गिरेगा, फिर मैं इसका गर्दन खाऊंगा, ठीक है। फिर वो ऐसा सोचता है। तो सारा गेम माइंडसेट का है, ठीक है। अगर हाथी चाहे तो कुचल सकता है उस टाइगर को, ठीक है, बट नहीं कुचलता है। सारा गेम माइंडसेट का है, अगर आपके माइंडसेट में है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपको आपको लग रहा है बस ये ऐसे ही फेंक रहा है, बट ये टाइम लाइन है दोस्तों। अगर कोई भी देख रहा हो, मुझे तो पता है वैसे कोई नहीं देख रहा है, ठीक है, बट फिर भी अगर कोई भी देख रहा हो तो डेट नोट कर लीजिए, आज है 29 जनवरी 2026,
ठीक है, और मैं कंसिस्टेंसी के साथ, मुझे नहीं पता जो मैं कर रहा हूँ सही है गलत है वट एवर, क्योंकि देखो मैं सोचने में परफेक्टनेस के चक्कर में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, और अब मैं टाइम और ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जो है जैसे है मैंने बस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इससे ज़्यादा क्या होगा, अगर मैं 10 वीडियो लगातार 20 वीडियो एक महीने तक दो, वैसे तो मेरा चैलेंज 60 डे था। ठीक है, अगर मैंने 60 डे तक लगातार जो मैंने वीडियोस डाला बना के, ठीक है, इससे क्या होगा, मेरी जो फ्लुएंसी है वो कम्युनिकेशन स्किल है, अगर मैं अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंस कर पा रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्रेस कर पाऊंगा किसी के सामने। ठीक है, और लाइक हमारी क्लास में पीपीटी होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन होता है, तो वहाँ पे ना जब मैं स्टेज पे गया था तो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था ना, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं। ठीक है, तो वो उस चीज़ में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा मुझे। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ कि ये मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, मेरा मुझे प्रैक्टिस हो जाए, मेरी बॉडी लैंग्वेज से हो जाए। ठीक है, और मतलब मैं फ्लुएंसी के साथ बोल सकूँ। ठीक है, तो बस यही है, मेरा मेन मोटिव यही है। ठीक है, और बाकी आई थिंक वीडियो की टाइमलाइन ज़्यादा हो चुकी है, 11 मिनट हो गया है। ठीक है, तो मेरा यही था कि हर रोज़ डेली 3 मिनट प्रैक्टिस करना है, उसके बाद मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए दोस्तों इतना ही। एंड एक बात और, यार देखो, हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं। ठीक है, हम लोग, सच बताऊँ तो अभी मेरी कॉलेज फीस है 80, मतलब 85,000 फीस है, कॉलेज पर सेमेस्टर की फीस है। और मेरे पापा की सैलरी है अभी अप्रॉक्स 13,000। अब तुम ये देखो, 13,000 पापा की सैलरी और 85,000 मेरा फीस है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, पर सेम। ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्चा है मेरे पापा के ऊपर। ठीक है, और मतलब लाइक ऐसा समझ लो कि वो स्कॉलरशिप लगा इस करके थोड़ा सा डिस्काउंट लगा है। ठीक है, जिससे मेरी फ़ीस थोड़ी कम हुई है, जिसके कारण भी बहुत दिक्कत होता है इस। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मतलब लाइक हम लोग कैसे कर रहे हैं, मतलब बट कैसे, मतलब कितना, मतलब लाइक मेरे को रियलाइज़ हुआ आज कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार। आज के टाइम में ना भाई पैसा कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सोचा ना भाई कि अगर सच में अगर चाहें हम तो पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो मेरा फील्ड है कंप्यूटर साइंस, बीटेक कर रहा हूँ। ठीक है, और अभी मेरा 4th सेम में है। ठीक है, तो 2 साल जा चुका है। अभी हमने पढ़ा दिया गया है, मशीन लर्निंग पढ़ा दिए थोड़ा सा, उसका बेसिक, एंड देन C++ पढ़ा दिए। ठीक है, और ये सब चीज़ें पढ़ा दी, बट तुम्हें पता ही है कि कॉलेज में कैसे पढ़ाते हैं, तुम्हें पता, पाइथन भी पढ़ा दिए, बट वही बात है ना, बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, बट यार देखो मेन चीज़ है क्या ना, कि हमें पैसे कमाने हैं, जो भी है नॉलेज उसको यूज़ करके। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं आने वाले 30 दिन तक स्किल सीखूंगा, 31वें दिन में फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर दूंगा। 30 दिन तक स्किल सीखूंगा, 31वें दिन फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर दूंगा। क्लाइंट से बात करना है, कैसे करना है क्लाइंट से बात करना, ये जो भी कुछ है, मैसेज करना है, डीएम करना, फ्री वेबसाइट बनाना, या अगर कोई ऐप बनाना होगा, मैं वो काम शुरू कर दूंगा। बस मुझे आए ना आए, आई डोंट केयर। बट आज है 29, ओके, आज से ठीक, मेन प्रॉब्लम मेरा थोड़ा फीस का इशू। ठीक है, उसको मैं कल जाके बात करता हूँ क्या सीन है। ठीक है, उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स से सॉर्ट बात करके देखता हूँ, उसको मैनेज करने का बहुत प्रेशर रहता है यार। देखो मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, ऊपर से फिर एक तो फ्रेंड्स वगैरह। ठीक है, मतलब यार, मतलब अगर फिर भी देखो ना तो लाइफ बहुत बढ़िया है, बिकॉज हम लोग के पास टाइम है, घर वाले हमारे पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं, उनके पास उनकी फैमिली नहीं पढ़ा रही है उन्हें। ठीक है, आगे तो मतलब उनसे उनसे तो अच्छा है हमारा कि एटलीस्ट हमारे घर वाले पढ़ा तो रहे हैं। आई डोंट नो गाइस, कोई नहीं देख रहा, बट
ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आई थिंक टाइम हो चुका है ज़्यादा, मुझे सोना भी है। ओके, गुड नाइट। अगर अगर सच में वो कहते हैं ना सेल्फ कुछ सोचना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ टॉक, दैट मीन्स गुड। अगर सच में ऐसा कुछ होता है सोचने से, वो जो एफर्मेशन जो बोलते हैं अफर्मेशन, और सच में अफर्मेशन काम करता है, सच में अगर काम करता है, थर्ड ईयर के एंड तक मुझे 1 लाख रुपए इकट्ठा करना है, खुद से कमा के, खुद की स्किल यूज करके 1 लाख प्लस, 1 लाख तो एटलीस्ट 1 लाख तो इकट्ठा करना है खुद से। प्लीज गाइस, अगर अफर्मेशन करता है भगवान, प्लीज 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 गाइस, प्लीज कंसिस्टेंट, प्लीज पूरा हो जाए। थैंक यू।